اگر وہ کہتا ہے مشکل کے ساتھ آسانی ہے تو یقین رکھنا کیونکہ اس کی کہی ہوئی ہر بات کے ذرے ذرے میں بھی اس کی کوئی حکمت چھپی ہوتی ہے، لیکن تم نہیں جانتے۔ السلام علیکم گائز، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب بہت اچھے سے ہوں گے۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں منم ملک کا لکھا ہوا خوبصورت ناول نمکین پانیوں کا سفر۔ آج اس ناول کی لیٹسٹ ایپیسوڈ پیش کی جا رہی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں نمکین پانیوں کا سفر۔ آڈیو بائے رضیہ سلطانہ۔ سیمی لاؤنج میں کہیں نہیں تھی۔ اس نے آگے آ کر دیکھا جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہ صفحہ اب تک وہیں دھرا تھا۔ اس کے دماغ میں جیسے کوئی سسٹم سا ایکٹیو ہو گیا تھا۔ کہانیوں میں محبت ہمیشہ ادھوری اچھی لگتی ہے۔ اس نے درمیان میں کہیں لکھا ہوا تھا۔ وہ کلر پینسل سے لکھے الفاظ تھے، اس لیے کچھ موٹے لگتے تھے مگر انتہائی دلکش۔ اس نے نیچے نظریں دوڑائی۔ آنسو روک کے رکھنا اچھا ہے، لیکن اس چکر میں آنکھیں دکھنے لگتی ہیں اور خضر کی سانسیں رکنے لگی تھی۔ ایک کاغذ پر کئی خوبصورت جملے لکھے گئے تھے۔ وہ اس کاغذ کو لیے تیزی سے سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اسٹڈی روم میں گیا تھا۔ سیدھا بکس شیلف کی طرف جاتے ہوئے اس نے تیزی سے 2-3 کتابیں ایک ساتھ نکالی تھی۔ ان کتابوں کو ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ بیٹھا تو ٹائٹل پر شمائلہ بہادر خان کا نام جیسے مسکرا رہا تھا۔ خضر نے آج پہلی بار اس نام کو ایک لمحے کے لیے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے کتاب کھولی اور صفحہ پلٹا۔ آپ کی رائٹنگ کتنی خوبصورت ہے شمائلہ۔ جی ہاں، میں ہاتھ سے بہت لکھتی ہوں، وہ کھلکھلائی تھی۔ مجھے ہاتھ سے لکھنے کی عادت نہیں ہے۔ خضر نے دوسری کتاب کھولی، پھر تیسری اور فوراً صفحہ پلٹا۔ مجھے اتنی چھوٹی چھوٹی لائنز یاد نہیں رہ سکتی۔ ایسی مایوسانہ باتیں صرف وہی سوچ سکتی ہے۔ خضر نے وہ کاغذ کا ٹکڑا اس کتاب کے صفحے کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اگر نہ بھی رکھتا تو لفظ لفظ چیخ چیخ کر بول رہا تھا۔ یہ شمائلہ کی کتابیں تھیں جو وہ تختاً خضر کو دیتی رہی تھی، اور ان کتابوں پر لکھے کیپشن آٹوگراف سیمی کے لکھے اس بے رنگ سے کاغذ کی لکھائی سے میچ کر رہے تھے۔ لفظ لفظ ملتا ہوا، ہو بہو ویسا۔ امپوسیبل۔ خضر شال سا رہ گیا تھا۔ اس کی کتابوں پر لکھے آٹوگراف، اس کے پلے میں لکھے یادگار جملے، اس کے کردار کو لے کر لکھی گئی وہ لائن، خضر حیات کا نام رکھنے کے پیچھے کی وہ ساری سوچ، پزل کے سارے ٹکڑے اپنی جگہ پر آ گرے۔ ایک دم سے جیسے دماغ کا فانوس روشن ہو گیا تھا۔ شمائلہ نے اپنے محنت سے لکھے ناول کے ساتھ کیا کر دیا ہے؟ خضر کا شوق۔ مجھے تو لگا تھا ڈائجسٹ میں مصنفہ کے مرنے کی خبر شائع ہوتی۔ سیمی کا طنز، کتنی بے رحم ہو تم، جانتی ہو وہ تمہارے لیے کیا کر رہی ہے؟ خضر کا آتش جیسا غصہ، جانتی ہوں وہ میرے ساتھ کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ سیمی کا زخمی لہجہ، وہ میرے ساتھ بس یہی کر سکتی ہے۔ میری شرط ہے اس شمارے میں یہ اختتام شائع نہیں ہوگا۔ خضر شوق کے عالم میں بیٹھا رہا تھا۔ سیمی وہ سب اپنے بارے میں باتیں کرتی رہی تھی اور خضر کو اس کی صفاقی پر غصہ آتا۔ وہ میرے ساتھ بس یہی کر سکتی ہے۔ اسے سیمی کی بات کے پیچھے کی بے بسی اب جھلکتی نظر آ رہی تھی۔ اسے کتنا دکھ پہنچا ہوگا۔ اس کی پوری تحریر کو کسی نے خراب کرنے کی کوشش کی تھی۔ خضر کے چاروں طرف ایک ہی لفظ رقصاں تھا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ، شروعات سے لے کر اب تک سب جھوٹ۔ خضر کا خط لکھنا، شمائلہ کے اسے جوابات، اس کی کہانیوں کو لے کر وہ ساری ڈسکشن، گھنٹوں کسی بات کو ڈسکس کرنا، حالانکہ یہ سب بیکار تھا۔ شمائلہ تو کبھی لکھتی ہی نہیں تھی۔ جن چیزوں پر خضر بات کرتا تھا وہ تو پہلے ہی اپنی مرضی کے مطابق سیمی کہیں پہلے ہی قلم بند کر چکی ہوتی۔ وہ کتنا بے وقوف بنتا آیا تھا۔ خضر کے اسے سارے ٹائم پیریڈ اس کے پرخلوص تعلق، جذبات اور لگاؤ پر فقط ایک ہی لفظ کا کہکا لگا رہا تھا اور شور بلند ہو رہا تھا، جھوٹ جھوٹ جھوٹ۔ حویلی میں کھانے کی ٹیبل سجی تھی۔ بہت سارے دنوں بعد آج وہ سب اکٹھے کھانا کھا رہے تھے۔ وہ پہلے ہی 4 افراد پر مشتمل فیملی تھی۔ 1-2 لوگ بھی جوائن نہ کرتے تو ٹیبل بالکل سونی سونی سی لگتی تھی۔ شمریز گھر پر موجود بھی ہوتا تو ایسا رہتا گویا کسی کو جانتا ہی نہیں، اور شمائلہ کے پاس بھی آج کل اپنے سوا کسی کے لیے وقت نہیں تھا۔ شمریز بیٹے، تم نے اپنے مستقبل کے بارے میں کیا سوچ رکھا ہے؟ کھانا اختتام پر تھا جب بہادر صاحب نے محبت سے شمریز سے بات کا آغاز کیا تھا۔ شمریز نے ایک نظر اٹھا کر انہیں دیکھا، پھر نظریں جھکا لی۔ کچھ خاص نہیں، وہ بیٹے کی کیفیت سے واقف تھے۔
इसलिए हिम्मत ना हारते हुए गोया हुए, तुम बिल्कुल चुप और गुमसुम होकर रह गए हो। कोई परेशानी है तो हमसे शेयर करो बेटे। उनकी बात पर शुमाइला ने भी चौंकते हुए उसकी तरफ देखा था। वो ठीक कह रहे थे। शुमाइला ने उसका ध्यान रखना ही छोड़ दिया था। जी आपसे करूंगा। उसने ताबेदारी का मुजाहिरा किया और मुख्तसर सी बात, हम सोच रहे हैं हमें अपनी मुख्तसर सी फैमिली में एक और फर्द का इजाफा करना चाहिए। वो मुस्कुराती नजरों से उसे देखते हुए मुद्दा पर आ रहे थे। बेटियां तो अपने घर की हो जाती हैं, इससे पहले हम चाहते हैं कि तुम्हारी एक प्यारी सी दुल्हन ले आए। नुदरत बज़ाहिर खाना खा रही थी, मगर उनका ध्यान पूरी तरह बाप बेटे की गुफ्तगू की तरफ था। शमरेज चौंका, फिर जैसे समझकर सर हिलाया। आप ठीक कह रहे हैं, मुझे भी आपसे इसी सिलसिले में बात करनी थी। वाकई? उन्होंने खुशगवार हैरत से बेगम की तरफ देखा था। नुदरत बेगम का दिल बोझ से हल्का होने लगा। माशाल्लाह, ये तो बहुत खुशी की बात है बेटा, हमें क्यों नहीं बताया? उनका बेटा यकीनन मूव ऑन करना चाहता था। छुपा रुस्तम। शुमाइला ने आंखें फैलाकर उसको घूरा था। तुमने मुझसे भी बात करना गवारा नहीं किया। तुम मुझे मुयस्सर कब होती हो शुमाइला? शमरेज ने आम से अंदाज में कहा था। ना शिकवा ना तंज। फिर भी शुमाइला अपनी जगह चोर सी बन गई। तुम वाकई शादी के लिए राजी हो शमरेज? नुदरत को ना जाने क्यों यकीन नहीं आ रहा था। जी अम्मी। किससे? वो पुरजोश सी होकर बोली। उसी से। अब की बार फुर्सत से उसने सर उठाया। और कौन होगा अम्मी? आप लोग तो पहले से जानते हैं, वो इत्मीनान से कह रहा था। शुमाइला ने अचंभे से देखा। कौन? जबकि नुदरत बेगम के हाथ से चमचा छूट गया था। एक जोरदार छन्नाके का शोर गूंज उठा। सिमी अपनी अलमारी की सफाई कर रही थी। खिजर धुआं धुआं चेहरा लिए कमरे में आया था। फिर उसने इतने जोर से दरवाजा बंद किया कि सिमी डर गई। क्या हुआ? उसने दिल पे हाथ रख कर पूछा था। धोखा। खिजर के लहजे में कोई नरमी नहीं थी। किसके साथ? सिमी को उसके रवैये की समझ नहीं आई थी। है एक बेवकूफ जिसके जज्बात के साथ खूब खेला गया। खिजर, आप इतने सीरियस क्यों हो रहे हैं? सिमी का दिल बैठ गया था। खिजर घसीटी नजरों से देखता उसकी समत भर रहा था। तुम हमेशा मुझसे बातें छुपाती आई हो, वो चबा चबा कर कह रहा था। मैंने तुमसे बारहा पूछने की कोशिश की कि ऐसा क्या है जो मुझे बार बार चौंका देता है। वो कौन सी चीज है जिसे मुझे लगता है कि मैं तुमसे पहले से वाकिफ हूँ? तुम्हारी आदत, तुम्हारी बातें, और तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। खिजर ने गुस्से में उसको सख्ती से झकड़ लिया था और इसी हालत में सिमी उल्टे कदमों दीवार से जा लगी थी। खिजर, वो सहम गई थी। मैं तुम्हें देखता तो मुझे लगता था तुम मेरे साथ खुली किताब की तरह हो, हम दोनों जैसे पहले भी मिले हों। मैं उलझ जाता था कि तुम्हारी गुफ्तगू से मिलती जुलती बातें मैंने कहाँ सुनी हैं। जिस तरह तुम अपने बालों की एक लिट से बांधती हो, ये उससे पहले मैंने कहाँ देखा है। वो गुलाबी पड़ती आंखों से उस पर बरस रहा था। सिमी के हवास कूच करने को थे। खिजर, तुम्हें क्या हो गया है? मुझे तकलीफ हो रही है। उसने उसके आहनी शिकंजे की तरफ इशारा किया जो खिजर ने उसको जगह रखा था, मगर वो कहाँ सुन रहा था। मुझे भी तकलीफ हो रही है। वो सारी दास्तानें, वो सारे किरदार, इन किरदारों की आदात, वो सब मुझे हरफ ब हरफ याद थी। बस वो सब मेरे लाशऊर से शाऊर में नहीं आ रहा था। और तुमने भी सिमी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। खिजर, क्या बोल रहे हो आप? सिमी ने अपने पीछे धकेलने की कोशिश की थी, मगर नाकामी पर कराह कर रह गई। एक राइटर किसी किरदार को लिखते हुए अपनी छोटी छोटी आदत उसमें मुंसलिक करता जाता है। कोई खास हरकत, कोई अच्छी बात, कोई क्लू। खिजर उस पर नजरें जमाए कहता जा रहा था। सिमी की सांस अटकी। वो आगे क्या बोलने जा रहा था? मैंने तुमसे कहा कि मुझे कैतकी को पढ़कर तुम्हारा ख्याल आता है, जैसे वो तुम्हें सामने रख कर लिखा गया हो, मगर तुम चुप रही। आप क्या कहना चाह रहे हैं? सिमी का दिल धक धक कर रहा था। शुमाइला बहादुर के हर मरकजी किरदार में तुम्हारी कोई ना कोई आदत पाई जाती है, कोई ना कोई खासियत जो सिर्फ तुम में पाई जाती है। सिमी, मैं गलत नहीं था। मुझे वो सारे किरदार अजबर है, वो सारे किरदार जिनको मिला दिया जाए तो एक इंसान बनता है। सिमी, तुम। उसकी बात पर धीरे धीरे सिमी के चेहरे का सारा रंग उड़ता गया था। और ऐसा सिर्फ तब मुमकिन है जब इन तमाम किरदारों को लिखने वाला कोई एक हो, वो इंसान खुद। ये साथ सामने के असरात नहीं थे, ना ही उससे कबल कहीं मिलने के। ये सिर्फ इसलिए था कि तुम मेरे सामने थी, इन दास्तानों की असल कलमकार। खिजर की आंखों में इतनी बेएतबारी और बेयकीनी तैरती इस कदर गहरी सतह थी कि सिमी ने जोर से अपनी आंखें मीच ली थी।
मैंने तुम्हारी हर बेरुखी सही सिमी, तुम्हारी बार बार की तलख कलामी भी मुझे पसपा ना कर पाई, और तुमने मुझे इस काबिल भी नहीं समझा कि इतना अरसा मेरे साथ रहते हुए अपनी हकीकत मुझे बता सको। नहीं खिजर, ऐसी बात नहीं है। सिमी ने नफी में सर हिलाते हुए उसकी बात रद्द की थी। खिजर इस बात से इतना हर्ट होगा सिमी को अंदाजा नहीं था। कैसी बात नहीं है? तुम्हारा राइटर होना या मुझे इस काबिल ना समझना? पहली बात सच है, उसने धीमी आवाज में एतराफ किया था। खिजर के चेहरे के कई तासुरात बदले थे। लेकिन दूसरी बात, आप गलत समझ रहे हैं। मेरे लिए ये बात इतनी अहम नहीं थी कि बताती। वाओ! खिजर ने उसको हल्का सा झटका देकर छोड़ा था। वाओ! हंसकर उसने ताली बजाई। तुम्हारे लिए ये बात अहम नहीं थी? तुम लोगों ने मुझे पागल बनाया, मेरे जज्बात का मजाक उड़ाया। नहीं खिजर, मेरा इसमें क्या कसूर है? वो इस इल्जाम को कबूल नहीं कर सकती थी। हमेशा से तुम लिखती थी सिमी, तुमने शुमाइला को आगे क्यों किया? तुम्हें एक पल को ख्याल नहीं आया कि तुम दोनों मेरे साथ धोखा कर रही हो? खिजर का पारा हाई था, गुस्से का गिराफ नीचे होने में नहीं आ रहा था। सिमी 2 कदम आगे आई। मैंने हमेशा शुमाइला का नाम इस्तेमाल किया है खिजर। आपने वो खत उसी को लिखा और उसी को मिला और उसी ने जवाब दिया। अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे तो इसमें मेरा कोई किरदार नहीं। हंसने वालों में तुम शामिल रही होगी ना? उसे अनजाने क्यों इतना गुस्सा आ रहा था। सिमी का इस्तराब भर रहा था। हमने आपका कोई मजाक नहीं बनाया खिजर, हम कम अज कम मेरा इसमें कोई हाथ नहीं। और रही बात शुमाइला की, सिमी ने उस नाम पर आज भी नजरें चुराई थी। वो आपसे सचमुच मोहब्बत करती है, शायद आपसे भी ज्यादा। और मैं जो तुमसे बातें करता था, तुम्हें बताता था कि मैं उसका कितना बड़ा फैन हूँ, क्या तुम्हारा दिल नहीं चाहता था सिमी कि तुम मुझे बताओ जिसकी मैं तारीफें करता हूँ उसकी हकदार तुम हो, जिससे मैं मुतासिर हूँ वो मेरे सामने बैठी है, मेरी जिंदगी में है। मेरे लिए मेरा काम अहम है खिजर, ये सताइश नहीं। आप बहुत जज्बाती हो रहे हैं। वो बेबसी से सर झुका कर रह गई थी। वो किसी तरह समझाती खिजर को कि वो ऐसी ही है, वो शुमाइला के जैसी नहीं है। अब भी नहीं सिमी, पहले की बात तो और थी। क्या अब भी तुम्हें फर्क नहीं पड़ा कि कोई तुम्हारे काम को किसी और के नाम से सराहे, बल्कि कोई और? क्यों? मैं भी वो कहना चाहता था कि अब भी वो उसके दिल पर दस्तक देने में नाकाम रहा है। क्या इस लड़की के दिल में जरा भी गुंजाइश नहीं थी उसके लिए? खिजर की कोई बात उसको पसंद नहीं आई थी। आई एम सॉरी, उसने लब कुचलते हुए कहा था। मुझ में हिम्मत नहीं खिजर, मेरे लिए ये एक सानवी चीज होकर रह गई थी। और क्या फर्क पड़ता है? जो जज्बा आप लोगों के दिलों में है एक दूसरे के लिए, इसका जरिया अगर मैं किसी नुक्ते पे बनी हूँ तो क्या फर्क पड़ता है? ये बहुत अहम बात नहीं है, वो शिकस्ता लहजे में कह रही थी। उसके अंदर कुछ जोर से टूटा था, हर दफा टूटता था। लेकिन हाँ, क्या फर्क पड़ता है? ये जगह उसकी तो नहीं थी। मेरे लिए बहुत अहम बात है। और ये जो तुम शुमाइला से मोहब्बत करती हो ना, ये मोहब्बत मुझे उस इंसान से थी जो इन अल्फाज को इतनी चाहत से लिखता था। मुझे मोहब्बत थी उस इंसान से जो मोहब्बत के मैनी बेजान सफ़ों पर बखेरता तो ये जज्बा खुद बोल उठता था। मोहब्बत थी तो उस इंसान से जो मोहब्बत की बसात पर अदबो आदाब से बात करता तो खुद ब खुद टूट कर प्यार आता था। शुमाइला को देखने से पहले, उससे मिलने से पहले, उसको जानने से पहले मैं गायबाना मोहब्बत करता था उस खूबसूरत दिल के मालिक इंसान जो मुझे सहरज़दा कर देता था। इस मोहब्बत में अकीदत भरी थी, बहुत मोहतरम थी तुम मेरे लिए, इतनी कि मैं तो खुद को उस इंसान के काबिल नहीं समझता था। शुमाइला से मेरी बातचीत शुरू हुई तो मुझे ये एजाज लगता था कि वो मेरी जिंदगी में शामिल हुई। वो बोलते बोलते हाँप गया था। सिमी साकत सी खड़ी उसे देख रही थी। एक इंसान अदालत भी लगा सकता है, उसके सामने मुजरिम भी बन सकती है। और आज वो बुनियाद ही खोखली निकली। जिस इंसान का मैंने सोचा था वो इंसान तो था ही नहीं। मेरे जज्बात, मेरे एहसासात सबका मजाक बनाकर रख दिया। ये भी नहीं सोचा कि ये झूठ कब तक छुप सकता है। उसकी आवाज धीमी पड़ गई थी। वो गुस्सा करके थक चुका था। उसका गुबार निकल गया था। अच्छा हुआ था कि निकल गया। वो गुबार सिमी की आंखों में छा रहा था। ये थी उस मोहब्बत की हकीकत और इस मोहब्बत का अंजाम। उसने एक मलामती निगाह सिमी पर डाली थी जो आंसू जब्त करने की कोशिश कर रही थी। खिजर, अब कोई बात मत करना मुझसे। खिजर ने शदीद नाराजगी के आलम में उसकी बात काटी और उससे पहले कि वो कमरे से निकलता, सिमी ने तेजी से आगे आकर उसका रास्ता रोका था। नहीं, उसने दोनों हाथ उठा दिए थे। आप कहीं मत जाइए।
शफाफ चेहरा, लरसती पलकें। उसने हाथ नहीं जोड़े थे, लेकिन आंखें यही इल्तिजा कर रही थी। आप मुझसे नाराज है ना? मुझसे गुस्सा? मैं इस कमरे से चली जाती हूँ। आप बाहर मत जाएं, प्लीज। वो उसके गुस्से में बाहर निकलने से बहुत खौफजदा थी। एक बार पहले भी उसे ना रोकने की सजा पा चुकी थी। ये वाकया दोहराना नहीं चाहती थी। खिजर के सीने में अटकी सांस खारिज नहीं हुई। वो तेजी से कमरे से बाहर निकल गई थी। खिजर बंद दरवाजे को देखने लगा, जिसके पीछे वो गुम हो गई थी। इस कमरे की तरह आज उसका दिल भी खाली खाली हो रहा था। दिमाग ठीक है तुम्हारा? नुदरत फौरन सीख पा हो गई थी। या यहाँ पर कोई मजाक हो रहा है कि जो जुबान पर आएगा बोल दोगे? बेगम, बहादुर साहिब ने टोका। आपने सुनी नहीं इसकी बात? उनका पारा हाई हो गया। शुमाइला उलझन से इन तीनों को देख रही थी। किसकी बात हो रही है? मुझे भी कुछ बताएं। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारे भाई का। बेटे, ये किस तरह मुमकिन है? तुम जानते हो उसका निकाह हो गया है और एक शादीशुदा लड़की के बारे में ऐसी बात सोचना भी गुनाह है। ये जेब नहीं देता आपको। वो कदरे नरमी से मगर दो टोक अंदाज में बोले थे। शुमाइला हक्का बक्का सी रह गई थी। बाबा, आप किसकी बात कर रहे हैं? शमरेज किसी शादीशुदा लड़की से? उसकी आंखें मारे हैरत के फट गई थी। भला उसका भाई शमरेज ऐसा कैसे कह सकता है? बाबा, जब दिल ही रजामंद ना हो तो निकाह कैसा? आप जानते हैं ये बेजोड़ ताल्लुक है जो थोड़े ही वक्त में टूट जाएगा। आप लोग इस वक्त के लिए तैयार रहें। ख्यालों में भी मत सोचना शमरेज, मैं उसे एक कदम भी नहीं रखने दूंगी। नुदरत गुस्से से पागल होकर उस पर चलाई थी। आप लोग सोच लें, क्योंकि मेरे दिल पर तो सिर्फ एक ही नाम लिखा है, सानिया। कौन सानिया? शुमाइला के सर पर बम फटा। उसके जहन ने फौरन ये नाम जज़ब नहीं किया था। मैं मर जाऊंगी मगर तुम्हें हरगिज नहीं करने दूंगी। वो उठकर उसके मुकाबिल आ गई थी। शमरेज ने गहरी सांस ली। आप जिंदा रहें, फिर मैं मर जाता हूँ। कुर्सी धकेलता वो उठकर चला गया। सारे में सकूत छा गया, वहशत भरा सन्नाटा। इस वहशत से सबके असाब झंझला उठे थे। ये किस सानिया की बात कर रहे हैं बाबा? शुमाइला ने खदशे से लरसते दिल के साथ सवाल किया। बहादुर साहिब ने जवाबन उसे जिस नजरों से देखा, उसकी रही सही उम्मीद भी जाती रही थी। उसके दिल को धक्का लगा। फिर किसी ने तेज धार खंजर उसके दिल में उतार दिया था। नुकसान सिर्फ शुमाइला का नहीं हुआ था, उसका भाई भी इसी कश्ती का सवार था। उसके सर में तेज दर्द उठा। वो आंधी की जद में आए वजूद को बामुश्किल संभालती उठी थी। कौन कौन सा खसारा अभी शुमार करना बाकी था। हाकिम खानदान किसी आकाश बेल की तरह उनसे बुरी तरह लिपट गया था। वो आकाश बेल जिसकी कोई जड़ें नहीं थी कि काट कर उनसे छुटकारा हासिल कर लिया जाता। खिजर उससे शदीद नाराज हो चुका था। ये पहली बार था कि खिजर ने उसे बोलचाल बंद कर दी थी। हमेशा वो ही उससे नाराज होती आई थी और खिजर अगले ही पल उसे मनाने में पहल कर लेता था। लेकिन इस बार उससे शदीद नाराज था और सीमी को घर कोई चीज अच्छी नहीं लग रही थी। हालांकि वो ये कहती थी कि उसे खिजर की जरूरत नहीं थी, ना खिजर के बहलाओं की, ना खिजर की संगत की, ना उसकी परवाह की। मगर अब जब उसे हकीकत में ये बेअतनाई सहनी पड़ रही थी तो सीमी को बहुत बुरी लग रही थी। दुनिया की हर चीज से भर कर बुरी। उसे खिजर की आदत पड़ चुकी थी। उसे खिजर की हर चीज की परवाह थी और अब ये एहसास पूरी शिद्दत से हो रहा था। वो उसके इस मूड की आदी नहीं थी और उसे तकलीफ हो रही थी। मगर खिजर टासे से मस्त ना हो रहा था। उसे वो रौनक भली लगती थी जो खिजर की आंखों से उसके दिल पर उतरती। अब वो आंखें खफा खफा थी और बुझी बुझी। उसकी मुस्कुराहट से दुनिया आबाद लगती थी और अब सीमी को लग रहा था कि वो उस मुस्कुराहट की खुशकसाली से मर जाएगी। उसे खिजर की बातों की कहतसाली से गुजरना पड़ रहा था। वो फाकों सी गुजर रही थी। खिजर से बात करने की कोशिश करती तो वो नजरअंदाज कर देता। सीमी में हिम्मत नहीं थी कि वो बराह रास्त उसे मुखातिब करती। उसे मनाना नहीं आता था और वो मान नहीं रहा था। खिजर उसे कभी दूसरे कमरे में सोने की इजाजत नहीं देता था और अब 3 दिनों से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो हर रोज मनाहिल को कहानी सुनाने जाती तो खिजर उसे कहना नहीं भूलता था, कहानी मुख्तसर सुनाना, तुम्हारे कमरे में मौजूदगी के बगैर मुझे नींद नहीं आती। और अब ये जुमला सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। मगर इस शख्स को शायद अब उसकी गैर मौजूदगी में नींद आने लगी थी, उसकी सारी नींदें उड़ाकर।
खिजर के ऑफिस जाने का पहला दिन था। रात को उसने खाने की टेबल पर बात की। सिमी दिल पर पत्थर रखती हुई खुद कमरे में चली गई थी। वो लैपटॉप गोद में रखे बैठा था। टांगें टेबल पर लंबी करके सिमी ने खामोशी से उसकी पसंदीदा शर्ट निकाली। क्या कर रही हो? वो शर्ट लेकर जाने लगी कि खिजर ने उसे पुकार लिया। ला ताल्लुक सा अंदाज, फीका लहजा, स्त्री। उसने यक लफ्जी जवाब दिया और रो देने को हो गई। रहने दो, मैं खुद कर लूंगा। नहीं, मैं कर देती हूँ। क्यों? क्या मैंने कहा है? आपने कहा आप कल ऑफिस, तो मैं फ्री हूँ, प्रेस कर देती हूँ। खिजर ने उसकी बात पे लैपटॉप गोद से उठाकर टेबल पर रखा। उठकर शर्ट उसके हाथ से ली। अब मैं भी फ्री हूँ, खुद कर लेता हूँ। और शर्ट लेता हुआ उसकी नजरों से ओझल हो गया। सिमी जब्त करती हुई बाहर निकली। मिनाहिल सोफे पर बैठी टीवी देख रही थी। हिना ने इस्त्री स्टैंड की तरफ जाते खिजर को देखा और मनाहिल की जानिब भरती सिमी को। चलो मनाहिल, आज हम साथ सोते हैं। याहू! मनाहिल खुशी से उछली। हम दो कहानियां सुनेंगे। डन? सिमी की आवाज भारी हो रही थी। तुम उसके कमरे में क्यों सोओगी? हिना ने पूछ लिया। उन आंखियों से खिजर को देखा। वो शर्ट को रगड़ रगड़ कर इस्त्री कर रहा था। मेरे सर में दर्द हो रहा है, तो अपने कमरे में जाकर आराम करो, हिना ने संजीदगी से कहा था। खिजर ने जरा की जरा नजर उस पर डाली। बहाना बनाना भी नहीं आता। नहीं, इतना भी दर्द नहीं है, वो बोझल आवाज में कहती मनाहिल को लेती हुई आगे बढ़ गई और खिजर ने उसको आवाज नहीं दी थी। अगली सुबह वो ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। सिमी सुबह सवेरे ही उठ गई थी। उसे एक उम्मीद सी थी। आज उसका ऑफिस का पहला दिन था और वो नाराजगी छोड़कर हमेशा की तरह मुस्कुराता हुआ कहेगा, आओ यार, आज ऑफिस का पहला दिन है, मैं नहीं चाहता कि हम नाराज रहें। उसकी शुरुआत अच्छे काम से करते हैं, चलो हम सुलह करते हैं। सीमे को यह सुनने की शदीद चाह थी। एक बार खिजर पहल कर ले, उसके बाद वो अपनी तरफ से माजरत कर लेगी। खिजर ने ब्लैक पैंट पर सफेद शर्ट जेब तनका रखी थी, साथ मैरून कलर पर सफेद दानों वाली टाई, बाल जेल लगाकर नफासा से बनाए गए थे। कलाई में कीमती घड़ी, दिल फरेब खुशबू में भीगा खिजर दस्तगीर। सीमी की पहली नजर पड़ी तो आम दिनों से इतना प्यारा लग रहा था कि दिल में उसने नजर उतारने का विर्द शुरू कर दिया था। वो किचन में नाश्ता बना रही थी। खिजर के कदमों की चाप किचन में आकर थमी। उसका पूरा वजूद जैसे समात बन गया था। हिना, एक कप चाय बना दो। हाँ, ये सिमी बना चुकी है, हिना ने मसरूफ अंदाज में जवाब दिया। हिना, मैंने तुमसे कहा है, मैं काम कर रही हूँ खिजर, उसने मुड़े बगैर जवाब दिया था। ठीक है, मैं बाहर से पी लूंगा। जवाब पर हिना पलटी। खिजर किचन से जा चुका था। वो तेजी से बाहर गई थी। ठहरो खिजर, बात सुनो मेरी। सिमी बेहिसो हरकत खड़ी थी, इस कदर खुफगी और दिल में उमड़ता गुस्सा और आंख में उतरती नमी पीने लगी। धरती पर शाम उतर रही थी, हर सूट ठंडी छाया। तुम्हारी खिजर से नाराजगी चल रही है। हिना को खामोश और मगमूम सी सिमी अच्छी नहीं लग रही थी। शाम को उसे फुर्सत मिली तो उसने पूछ लिया। मेरी नहीं, उनकी मुझसे, सिमी ने मुंह बनाकर जवाब दिया था। लेकिन किस बात पर सिमी? हिना ने बेइख्तियार पूछा था, फिर संभल कर दोबारा गोया हुई। मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहती, अगर तुम बताना चाहो, क्योंकि आज से पहले मैंने खिजर को इतना सीरियस नहीं देखा। बात भी इतनी बड़ी नहीं है हिना, सिमी ने अपनी हथेलियां मसली। क्या बात है? खिजर जिस लड़की से मोहब्बत करते थे, मतलब एक नावल निगार से, उनके मद्दाह के तौर पर। हाँ, ये बात मैं जानती हूँ, उसने मुझे बताया था, मगर अब तो हालात मुख्तलिफ हैं। क्या इस बात को लेकर? वो मैं हूँ हिना, शुमाइला नहीं, सिमी ने सर झुकाकर एतराफ किया। हिना के चेहरे पर बेयकीनी का तासुर उभरा। शुमाइला नहीं, मैं लिखती हूँ, मैं उसका नाम यूज करती हूँ और वो मेरा काम। अल्लाह सिमी, अपना आजाद तो सबसे कीमती होता है। तुम किस तरह अपनी मेहनत पर किसी दूसरे का नाम बर्दाश्त करती आई हो? क्या तुम्हें अफसोस नहीं होता था? क्या तुम बासलाहियत होते हुए गुमनाम रहो? और नहीं, सिमी ने नजरें झुका ली। मेरे घर के सरबराह ये चीज पसंद नहीं करते, मैं उनसे डरती थी, लेकिन देखो जो कुछ हुआ वो इससे भी ज्यादा खौफनाक। खिजर को मना लो सिमी, हिना ने नरमी से उसके हाथ पर हाथ रखा। मैं नहीं मनाऊंगी। उसके अंदर भी जिद पैदा हो गई। माफी मांगने से अगर लग रहा हो कि सामने वाले के दिल में अपनी फतह की बजाय आपकी कदर में इजाफा होगा, तो झुक जाना चाहिए। जो लोग आपको दिल में रखते हैं वो आपकी जरा सी पेशकदमी पर फौरन ढेर हो जाते हैं सिमी। हिना उसको मोहब्बत से समझा रही थी। सिमी को शायद उसकी बात पर यकीन था, जब ही खामोश रही। जाओ,
खिजर शावर लेकर फारिग हुआ था। तौलिए को बालों पर रगड़ता हुआ उसने एक नजर आईने में खुद पर डाली। उसके चेहरे पर गैर दिलचस्पी सी थी। मोबाइल की स्क्रीन रोशन की तो चेहरे का तासुर बदला। शुमाइला का मैसेज जगमगा रहा था। वो नहीं जानती थी कि खिजर को क्या मालूम हो चुका है। वो एक ही झटके में उसके दिल से उतर चुकी है। सोचते हुए उसका मुंह मजीद कड़वा हो गया, मगर वो इस तरह खामोश भी नहीं रह सकता था। उसने मोबाइल उठाया और शुमाइला का नंबर डायल किया। जिस लम्हे उसने शुमाइला से बात शुरू की थी, ऐन उसी लम्हे सिमी दरवाजे पर आकर रुकी थी। आप कह रही हैं तो ठीक ही होगा। उसका लहजा किसी भी किस्म के जज्बात से आ रही था। मैं मसरूफ था शुमाइला। सिमी ने पहला कदम कमरे में रखा था और बर्फ हो गई। मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, कुछ जरूरी बातें करनी है आपसे। खिजर उसकी मौजूदगी से अनजान कहता जा रहा था और सिमी का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में भींच कर निचोड़ लिया। आप कब आ सकती हैं शहर? सिमी के अंदर से खिजर के लिए हर जज्बा, हर एहसास भाप बनकर उठता चला गया था। उसके कदमों में आग दहक रही थी। इस मंथ के लास्ट वीक मुझे एक डील के सिलसिले में इस्लामाबाद जाना है। ये भी उसके लिए एक नई इत्तला थी, वो इत्तला जो उसको नहीं मिली थी, शुमाइला को मिल रही थी। श्योर। इससे पहले उसने बात खत्म की, मोबाइल कान से हटाया, मोरा और ठिठका। सिमी चेहरे पर बदगुमानी के हजारों रंग लिए साकतो सामत खड़ी थी, इतनी ठोस और जामत कि खिजर एक पल को सारी खुफगी भूल गया। ये हैं आपके डबल स्टैंडर्ड। जिस बात को लेकर आप मुझे गिल्टी फील करवा रहे हैं, इसी बात पर आप अपनी मुलाकातें का तय कर रहे हैं। सिमी जहर खुंद लहजे में बोली थी। खिजर समझ गया था कि वो उससे क्या अखज़ कर रही है। वेट, तुम गलत समझ रही हो। मैं आपको गलत समझ रही थी। कल तक जिस लड़की ने आपको बेवकूफ बनाया, आपके जज्बात से खेला, आज आपके दिल में उसके लिए नरम गोशा क्यों पैदा हो गया है? वो हलक के बल चलाई थी। ये आवाज बाहर तक गई, शायद घर के अफराद के कानों तक। उसे परवाह नहीं थी। वो आपे से बाहर हो रही थी और आंखें उबल उबल रही थी। सिमी, ऐसा कुछ नहीं है। खिजर ने सख्ती से उसे मना किया था, मगर इतने दिनों का लावा था, आतिश फिशां बिला आखिर फट गया था। मैं आपको मुख्तलिफ समझ रही थी खिजर। मुझे गिल्ट था कि आपके जज्बात मजरूह हुए, मगर नहीं, आप भी बाकी सब की तरह निकले, दूसरों को खिलौना समझने वाले। मेरे बारे में अंदाजे मत लगाओ तुम, समझी? खिजर को भी गुस्सा आने लगा था। ये अंदाजे नहीं है खिजर साहिब, मुझे यकीन हो गया है, हमेशा से था, मगर एक मोड़ पर आकर मुझे लगा शायद मैं गलत थी। मैं ही बेवकूफ हूँ कि बार बार धोखा खा जाती हूँ, कभी दोस्त मानने वाली के हाथों तो कभी। उसने सुलगती निगाहें खिजर पर डाली थी। नापसंदीदगी, गुस्सा, नफरत, बदगुमानी, क्या क्या भरा था इन आंखों में। तुम मुझे शुमाइला से मिला रही हो? खिजर को सदमा पहुंचा, उसकी आंखें चुंदिया आ गई। तुम दोनों जुदा कब हुए थे? मेरे मिलाने की जरूरत पड़ती। खिजर, आपने भी मेरा फायदा उठाया है। आप हमेशा शुमाइला के थे, मेरे साथ तो फकत दिल बहला रहे थे, तरस खा रहे थे। शट अप सिमी, खिजर धारा था। तुम्हें सुनाई दे रहा है क्या बकवास कर रही हूँ? क्यों बुरा लग गया? बताओ मुझे, क्यों उससे ताल्लुक रख रहे हो? अब तो सब कुछ जानते हो तुम, फिर ऐसी कौन सी जरूरी बातें रह गई हैं? सिमी का लहजा इतना तहकीर अमेज हो गया था कि खिजर का गुस्सा भी सवा नेज़े पर जा पहुंचा था। मैं तुम्हें जवाबदेह नहीं हूँ, मेरी जिंदगी है, वो करख्तगी से बोला था। सिमी के चेहरे पर तमस्खर उड़ा। और मेरी जिंदगी में तुमने आने की कोशिश क्यों की? तुम क्यों मुझ पर मुसल्लत हो रहे हो? तुम अंदर से वो नहीं हो जो बाहर से हो। मैं बहुत पहले जान गई थी। क्या क्या जानती हो मेरे बारे में? सिर्फ एक फोन कॉल की चंद बातें सुन के, जिसके बारे में तुम्हें मालूम भी नहीं कि वो किस मकसद से हो रही थी। मैं 2 हरफ भेजती हूँ तमाम वजूहात पर। उसके अंदर भड़कती आवाज दूर तक फैलती जा रही थी। सब कुछ राख में बदलता जा रहा था। पहले इस सेल्फिश लड़की ने मुझे यूज किया और अब तुम दोनों एक से हो। तुम भी मेरे मुजरिम हो, वो गरा कर बोली थी। उसके अंदर इतना गुस्सा जमा हो सकता था, उसका शायद सिमी को भी अंदाजा नहीं था। आज बताओ मुझे, ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हारी नजरों में मुझे मुजरिम बना देती है? तुम्हें किसने हक दिया है कि जिसने आपको ये हक दिया कि मेरे किरदार पर सवाल उठाते? लेकिन आपके लिए शुमाइला अहम थी, अपनी मोहब्बत अहम, इंसानियत नहीं। मतलब शुमाइला को सच्चा साबित करने के लिए आपने मेरी चादर मेरे घर पहुंचाई खिजर? क्यों? आपको किसने कहा आप मुझसे उन लम्हों का खराज वसूल करते जिनके बारे में आप कुछ नहीं जानते थे? आज वो फट पड़ी थी और खिजर के सर पर पहाड़ गिर पड़ा। वो सारी नफरत, सिमी का बार बार उसे धुतकारना, उसकी मुजरमाना निगाहें, उसे दूर भागना, सब कुछ खिजर पर आश्कार हो गया था और खिजर वो गुंग सा उसे देखता जा रहा था।
आपके लिए वो अहम थी। आपने सोचा वो सच्ची साबित हो जाए, सिमी जाए भाड़ में। उसका पूरा वजूद आंधियों की ज़द में था। गुस्से में निकले अल्फाज कभी वहां से नहीं निकाले जा सकते जहां जहां वो जाकर पेवस्त होते हैं। बोलने से पहले ख्याल नहीं आता, जब ख्याल आता है तो लम्हा वापस नहीं आता। आपने मेरे साथ बहुत गलत किया है, आप जानते हैं, इसलिए सिमी आपका साथ कभी कबूल नहीं कर सकती। वो बहते आंसुओं के साथ कुछ संगीन बोलने जा रही थी। खिजर ऐसे शौक के जेर असर था कि उसके मुंह से अल्फाज नहीं निकल पा रहे थे। आप भी उन मर्दों की तरह निकले जो घर में बीवी से झूठी मोहब्बत के दावे करते हैं और बाहर अपनी महबूबा। सिमी बेइख्तियार खिजर के हाथ बुलंद हुआ। वक्त साकत हुआ था, लम्हे गूंगे। खिजर का हाथ फिजा में ही मौलक रहा, लेकिन सिमी की जुबान को ब्रेक लग गई थी। यू नो वट, खिजर ने मुट्ठी सख्ती से भींचकर दीवार में मुक्का मारा। तुम मुझे डिजर्व ही नहीं करती, कभी भी नहीं। वो खून रंग आंखें लिए एक झटके से मुड़ा था और मुड़ने पर उसे दूसरा झटका लगा। उसके पीछे चंद कदमों के फासले पर खुले दरवाजे में एक शख्सियत धुआं धुआं चेहरा लिए खड़ी थी। उनके चेहरे पर कई रंग थे और स्याह रंग इन तमाम रंगों पर गालिब आ रहा था। और वो वजूद, वो शख्सियत खिजर की अम्मा जान, सिमी की सास शकीला हयात। तुमने सिमी पर हाथ उठाया? शकीला की आवाज कुएं के आखिरी तह से आती महसूस हो रही थी। खिजर को दिल का धक्का लगा। अम्मा जान, शकीला कोई भी मंजर देख लेती, उन्हें इतनी तकलीफ ना पहुंचती जितनी इस वक्त वो महसूस कर रही थी। तुमने अपनी बीवी पर हाथ उठाने की कोशिश की? कौन हो तुम? मैं तुम्हें पहचान नहीं पा रही। अम्मा जान प्लीज। खिजर ने कभी उन्हें दुख नहीं पहुंचाया था। खिजर का दिल चाहा जमीन फटे और वो उसमें समा जाए, हर एक की नजर से ओझल हो जाए। मेरी कोमल सी बहन उसके बाप से थप्पड़ खाती आई। उस शख्स से मैंने हमेशा नफरत की, और आज मेरा बेटा, तुम उसके बाप जैसे कैसे हो गए? उनकी आवाज कुर्ब से फट रही थी। खिजर जैसे जमीन में धंस गया था, वो अपनी नजरों में गिर गया था। तुम्हें अमानत सौंपी थी मैंने। वो कुछ कहना चाहती थी, मगर हलक में कसा आंसुओं का फंदा उन्हें रोक रहा था। मेरी नजरों के सामने से हट जाओ खिजर, खुदा के लिए। अम्मा जान, मुझे सफाई का मौका, मेरे सामने से हट जाओ खिजर। उसकी तरफ देखकर भी नहीं देख रही थी। उस पर जान निशावर करने वाली माँ, उस पर फख्र करने वाली माँ। खिजर की शरियानें फटने लगी थी। वो पांव पकड़कर उनसे माफी मांग लेता, मगर इस वक्त खिजर को तन्हाई की जरूरत थी। वो एक पल मजीद ठहरता तो गिर जाता। शकीला और सिमी के बीच से खिजर निकलता चला गया था। शकीला ने एक नजर सिमी को देखा, फिर पूरी शिद्दत से आगे बढ़कर सिमी को गले लगा लिया था। उसी सिमी को जो बिल्कुल शल और निढाल सी खड़ी थी। अपने गुस्से में वो एक बार फिर अपनी और खिजर की जिंदगी धर्म भरम करने का सबब बन गई थी। शुमाइला ने खनकार कर गला साफ करते हुए गोया अपने आने की इतला दी थी। वो एक खास मकसद लेकर आई थी, एक परफेक्ट प्लान, और उसके चेहरे पर भरपूर तमानियत थी। कहाँ थी आप? मोइन तेजी से उसकी तरफ लपका था। मैं आपका इंतजार कर रहा था। वो आज बहुत बेताबी और इज्जत से बात कर रहा था। शुमाइला के लबों पर एक मुस्कुराहट रेंग गई।